کھیل سے کھلواڑ کرنے پر پاکستان کا سخت رد عمل۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا آئی سی سی سے میچ ریفری کو فوری ہٹانے کا مطالبہ۔ محسن نقوی نے آئی سی سی کو خط لکھ دیا، کہا میچ ریفری نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی۔ ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے کہ آئی سی سی میچ ریفری کے خلاف شکایت کی۔ ریفری کی عدم تبدیلی پر میچ نہ کھیلنے کی بات قبل از وقت ہے۔ میچ ریفری نے پاک بھارت میچ سے قبل دونوں ممالک کے کپتانوں کو ہاتھ نہ ملانے کا کہا تھا۔ پی سی بی کا بھارتی کرکٹ ٹیم کے نامناسب رویے پر آئی سی سی کو خط۔ میچ سے پہلے اور بعد میں بھارتی ٹیم کے رویے کو آئی سی سی قوانین کے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ پی سی بی کا آئی سی سی سے صورتحال کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ۔ بھارتی ٹیم کے نامناسب رویے پر پاکستانی ٹیم مینیجر نے بھی احتجاج کیا تھا۔ نوید اکرم چیمہ نے میچ ریفری کے رویے پر باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروایا۔ کہا بھارتی کھلاڑیوں کا ہاتھ نہ ملانا اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے۔ قومی کپتان سلمان علی آقا نے بھارتی رویے کے خلاف اختتامی تقریب میں شرکت نہیں کی تھی۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کہا کہ بھارتی ٹیم کی حرکت پر پاکستانی رد عمل فطری تھا۔ ملک کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن۔ خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران 31 بھارتی اسپانسرڈ خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 13 اور 14 ستمبر کو لکی مروت اور بنوں میں خوارش کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد لکی مروت میں 14 خوارج ہلاک ہوئے۔ بنوں میں دوسری کارروائی کے دوران 17 خوارج مارے گئے۔ بھارتی اسپانسرڈ شدہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کو پاکستان میں چھپنے نہیں دیں گے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسلم امت متحد۔ قطر پر حملے اور غضب جارحیت کے خلاف پاکستان مسلم ممالک یک زبان۔ خطے میں صہیونی شر انگیزی روکنے کے لیے دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کے لیے دوحہ روانہ ہو گئے۔ ہنگامی اجلاس قطر میں فضائی حملے، غزہ کشیدگی اور فلسطینیوں کی زبردستی بے دخلی کے تناظر میں بلایا گیا ہے۔ پاکستان کے تعاون سے بلائے گئے اجلاس میں OIC ممالک کے سربراہ اور اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ عرب اسلامی ممالک کے سربراہ اجلاس کا مسودہ تیار۔ سربراہی اجلاس میں قرارداد پیش کی جائے گی۔ پاکستان قطر کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ یکجہتی اور علاقائی اتحاد کے لیے وزیر اعظم نے 11 ستمبر کو دوحہ کا دورہ کیا اور قطری حکام کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان کا عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کا مطالبہ۔ دوحہ میں وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ٹاسک فورس اسرائیلی عزائم کی نگرانی کرے، اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کروائی جائے۔ اسرائیل کا احتساب عالمی نظام کی ساخت کا امتحان ہے۔ سلامتی کونسل غزہ میں ٹاسک فورس لگائے، عرب اور اسلامی ممالک متحد ہو کر مقابلہ کریں۔ دوحہ میں عرب اسلامی ممالک کے اجلاس میں پہلے مرحلے میں وزرائے خارجہ کا بند کمرہ اجلاس ہوا۔ اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر غور۔ دوسری جانب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے مشیر خارجہ بنگلہ دیش سے ملاقات۔ ترک، ایرانی، ازبیک اور ملیشین وزرائے خارجہ سے بھی ملے۔ قطری وزیر اعظم کا عالمی برادری سے دوہرا معیار ترک کرنے کا مطالبہ۔ دوحہ میں عرب اسلامی رہنماؤں کے ہنگامی اجلاس سے پہلے ہونے والے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری اسرائیل کو اس کے جرائم پر سزا دے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی نے کہا کہ صرف بیان بازیوں سے کام نہیں چلے گا، خطے کے ممالک اسرائیل کے خلاف مشترکہ آپریشن روم قائم کرے۔ ترک وزیر خارجہ حقان فدان نے کہا کہ گریٹر اسرائیل منصوبے کے لیے خطے کے ممالک کو کمزور اور تقسیم کیا جا رہا ہے۔ عرب اور اسلامی ممالک کو متحد ہو کر اسرائیلی توسیع پسندی کے خلاف اقدامات کرنا ہوں گے۔ قطر اور اسرائیل امریکہ کے اتحادی ہیں، شخصیات کو نشانہ بنانے وقت احتیاط کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو، کہا قطر کے ساتھ خاص تعلقات ہیں، امیر قطر عظیم رہنما ہیں، انہیں حماس کا کچھ کرنا ہوگا۔ دنیا بھر میں امریکی پرچم جلایا جا رہا ہے جو درست نہیں۔ روس پر پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یورپ کو بھی سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ یورپ کو روس سے تیل نہیں خریدنا چاہیے۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ وینزویلا سے بڑی مقدار میں منشیات امریکہ آ رہی ہیں۔ وینزویلا میں منشیات کارٹیلز کے خلاف آپریشن کا بھی فیصلہ نہیں کیا۔
दरियाई सिंध के बैराजों में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। दरियाई सिंध में गुड्डू, सखर और कोठरी बैराज पर पानी की आमद बढ़ने लगी। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 6,35,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,06,000 क्यूसिक हो गई। कोठरी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। लाड़काना में आकिला कानी लूप बंद से बड़ा रैला गुजर रहा है। 20 से ज्यादा देहात डूब गए। सखर में कच्चे के 30% से ज्यादा देहात का जमीनी राबता मुनक़दा। शिकारपुर में मुतअद्दिद देहात और खेत डूब गए। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। घोटकी के कच्चे में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 100 से ज्यादा छोटे बड़े देहात ज़ेरे आब आ गए। दरियाओं का जोर कम होने के बावजूद जनूबी पंजाब में तबाहकारियां। जलालपुर, पीरवाला में, शुजाबाद में सब कुछ सैलाबी रैलों की नज़र। धंधोबंद में शिगाफ बढ़कर 400 फीट हो गया। दर्जनों इलाके ज़राब, सैकड़ों अफराद फंस गए। रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को निकालने में मसरूफ। जलालपुर, पीरवाला में मोटरवे M5 शिगाफ बढ़ गया। पत्थर डालकर बचाने की कोशिशें जारी। बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया में भी सैलाबी रैलों से मुतादिद बस्तियां ज़राब। सादिकाबाद में नबी शाह के मकाम पर ज़मींदारा बंद टूट गया। चाचड़ा शरीफ में सैकड़ों फसलें तबाह हो गईं और शरीफ के 25 देहात पानी में डूबे हुए हैं। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। चक कहल, बुडानी, सरवराबाद, इस्माइलपुर, झांगड़ा, शर्की, खैरपुर, डाहा शदीद मुतासिर हुए। सैलाब ज़दगान की बहाली बड़ा चैलेंज है। मरियम नवाज जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सैलाब के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब पर उंगली वो लोग भी उठा रहे हैं जिनके अपने सूबे में सैलाब और बारिशों से सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए। दूसरी जानब सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का अलीपुर के इलाके में कंधाई पुल का दौरा। सैलाब मुतासरीन में राशन और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया। टेंट सिटी, क्लिनिक और व्हील सहूलियात मौजूद। मरियम औरंगजेब का बैड जनन बंद का भी दौरा। रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों का जायजा लिया। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का चौधरी रासिक इलाही के हमरा गुजरात में यूनियन काउंसिल मदीना और यूनियन काउंसिल सोकला का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और राशन दिया। मरकजी सदर PTI का कहना था कि सैलाब मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। मुश्किल घड़ी में अवाम की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। सियासी मुखालफिन शौबदेबाजी में मसरूफ़ हैं। अवाम के टैक्स के पैसे मुतासरीन में तकसीम करके एहसान जता रहे हैं। लोगों के घर मौजूदा हुक्मरानों की नाअहली के बायस डूबे हैं। हमारे दौर में मेगा मनसूबों से गुजरात में तरक्की हुई। पंजाब में सैलाब कम होने के बाद मसाइल के अंबार ने सर उठा लिया। खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद न मिलने का शिकवा। लाहौर के करीब मोहलनवाल में कैंप में मौजूद सैलाब ज़दगान कहते हैं, रिहाइश की सहूलत है ना खाने पीने का सामान। मुरीद के में सैलाब 21 देहात में तबाही की दास्तानी छोड़ गया। मुतासरीन कहते हैं सब कुछ पानी में बह गया, ताहाल इमदाद के लिए कोई नहीं पहुंचा। कसूर में दरिया सतलुज ने बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया। दर्जनों देहात की सड़कें खंडर बन गई। हैजा, डायरिया, डेंगू और खारिश जैसे अमराज फैलने लगे। पत्तोकी में भी बीमारियों ने मुतासरीन को घेर लिया। जानवरों के लिए चारा भी नापैद। शुजाबाद में धंधू बंद पर बैठी खातून को 3 बेटियों की शादी और घर की दोबारा तामीर की फिक्र। बुजुर्ग खातून का कहना है कि जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी में बह गई। बेटियों की शादी और दोबारा घर बनाने की सकत नहीं रही। कोई शका नहीं बची त्रै दिया मेरा जवान बैठन में शादी करनी है। मेरा बिरा जब मैं घर बढ़वावा जो शादी कराऊंगा। वजारत खजाना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के जरिए सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ करे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब को ख़त। ज़रई शोबे की बहाली पर जोर देने का भी मुतालबा। ख़त में कहा गया, ज़रई शोबे को इस वक्त नागयानी सूरत हाल का सामना है। हुकूमत को सही मानों में इक़दामात उठाने होंगे। IMF को रिलीफ के लिए कायल करना होगा, वरना टैक्स महसूलात में कमी का सामना करना पड़ सकता है। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली बिल 3 माह के लिए मुआफ़ किए जाएँ। खाद पर 30% सब्सिडी दी जाए। 2 साल के लिए 18% सेल टैक्स को मुआखर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब आज मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगी।
रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का जायजा लेंगी और मिसाल सुनेंगी। मरियम नवाज को रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी जारी मियांवाली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें फराटे भरने को तैयार। पहले मरहले में 15 इलेक्ट्रिक बसें पहुंचा दी गईं। वज़ीर आला पंजाब का आज मियांवाली का दौरा मुतवक्के। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर आला की आमद के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पंजाब में बारिशों का 11वां स्पेल कल से शुरू होने का इम्कान। 16 से 19 सितंबर तक सूबे के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जिहलुम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा और मियांवाली में भी बारिशों का इम्कान है। 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गिलियात के नदी नालों में बहाव के इजाफे का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों और अर्बन फ्लडिंग से नुकसान कुदरती तौर पर होता है। सियासी मुखालफिन आवाम के साथ देने के बजाय दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके। मेयर कराची मुर्जा वहाब कहते हैं कि हब कनाल और शारा भुट्टो के हवाले से मनफी प्रोपोगंडा चलाया गया। जलालपुर पीरवाला में भी सैलाब से मोटरवे डूब गई। अगर ये मोटरवे सिंध में होता तो अपोजिशन के अरकान पहुंच चुके होते। एशिया कप के हर मैच पर 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक क्रिकेटर्स के एक और मुआरका में कौमी टीम को मुफीद मशवरे। PJ मीर, अजहर खान और मोहम्मद इलियास के जानदार तबसरे और तज्जिए। टीमों की मजमूई कारकर्दगी और खिलाड़ियों की इनफरादी परफॉर्मेंस पर सरासर गुफ्तगू। कौन सी टीम इवेंट के फाइनल में पहुंचेगी, कौन कटवाएगा घर वापसी का टिकट। माहिर क्रिकेट मुबस्सिरीन बता रहे हैं हर मैच से पहले क्रिकेट का अहवाल। 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला फाइनल तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईने बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि इनकम टैक्स मुसल्लत नहीं कर सकते तो सुपर टैक्स कैसे मुसल्लत कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड किसी की ज़ाती जागीर नहीं होता। ट्रस्ट अथॉरिटी से गुजारिश करता है और फिर टैक्स मुतल्लिका को दिया जाता है। अगर अभी फंड पर 100 रुपये टैक्स लगता है तो 25 साल बाद ये 100 रुपये बढ़ते बढ़ते 550 रुपये हो जाएंगे। मतलब रिटायरमेंट के बाद जो फ़वाइद मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए कि सेकंड शेड्यूल पर प्रोविडेंट फंड पे सुपर टैक्स समेत हर टैक्स पर छूट होती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आजकल तो हर टैक्स पेयर को एडवांस टैक्स के लिए नोटिस आ रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए खुशखबरी। जुड़वां शहरों के दरमियान जदीद और तेज़ रफ्तार ट्रेन चलेगी। 20 मिनट सफ़र में तय होगा। वक्त और ईंधन की बचत होगी। ट्रेन सर्विस से दोनों शहरों के दरमियान ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवे की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला किया गया। ट्रेन मारगला स्टेशन इस्लामाबाद से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक चलेगी। आइंदा हफ्ते मनसूबे के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को हतमी शक्ल दी जाएगी। गाज़ा पर कब्जा 6 माह में मुमकिन। हमास को शिकस्त देना मुश्किल है। इस्राएली फौजी सरबराह ने सुहनी वज़ीर आज़म को बता दिया। ब्रीफिंग में कहा कि गाज़ा शहर पर मुकम्मल कब्जे के बावजूद हमास को अस्करी और सियासी शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुजाविज़ा ज़मीनी कार्रवाई से भी फैसला को नताइज हासिल नहीं होंगे। हतमी कामयाबी के लिए गाज़ा के दीगर इलाकों और मरकजी कैंपों तक कार्रवाई फैलानी होगी। दूसरी जानिब गाज़ा पर इस्राएली जारहियत ना थमी। मज़ीद 53 फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली फ़ौज की शेलिंग और फायरिंग से 40 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इस्राएली फ़ौज ने वस्ती और मगरबी इलाकों में भी फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। अमरीकी सदर की वाशिंगटन DC में सख्त कार्रवाई की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने गैर कानूनी रिहायशियों की मालूमात फराहम ना की तो कौमी हंगामी हालत नाफिज करके शहर को विफाकी कंट्रोल में ले लेंगे। इक़दाम कानून की बालादस्ती और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। इससे पहले मेयर वाशिंगटन मोरेल बाउज़र ने कहा कि पुलिस विफाकी दायरे के साथ ताउन नहीं करेगी।
آج دنیا بھر میں جمہوریت کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد شہریوں کو اپنی خواہشات کا آزادانہ اظہار اور آزادی سے جینے کے حق کو فروغ دینا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم جمہوریت پر پیغام میں کہا کہ یوم جمہوریت عوام کے سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق کی یاد دہانی ہے۔ 1973 کا آئین پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان جمہوری اقتدار کی پاسداری اور فروغ کے لیے ہمیشہ کام کرتا رہا ہے۔ ترقی یافتہ مستقبل کے لیے عوام، ادارے اور حکومت مل کر کام کریں گے۔